Good morning everyone. In this video I will discuss the nested queries or inner queries. So जैसे कि नाम से पता चलता है nested queries are the queries within another query. So query within another query is called nested query. मतलब एसक्यूएल क्वेरी के अंदर अगर हम एक और क्वेरी स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी, जहाँ इनर क्वेरी। तो सिंटेक्स क्या है कि जैसे ये तो आपको पता ही है कि वी यूज़ दिस सिंटेक्स फॉर ए पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी, सेलेक्ट कॉलम नेम 1 2 3 फ्रॉम टेबल नेम एंड देन वेयर expression. Now in case of nested query you will have another query. See, this query is in the brackets. You will have another query within a main query. So this is called nested query. Syntax is select column name from table where expression operator and then select column from table where condition. So it is very easy. So you will be able to understand this concept with the help of different examples. So for this I have created a table mym. So let us see the data of this table. So this is the table data: employee id, employee name, salary and employee city. As you can see there are 5 rows. Now I will explain you a single row subquery as well as multiple row subquery. So in single row subquery what will happen? Before explaining this concept, let me explain one or two more queries. Suppose this is the table and I want to see the maximum salary from this table. For this I use simply select max salary from employee name. So sorry, table name is mym. So select max salary from mym. So you can see the maximum salary is 990. Let me again show you the table data. Select star from my employee. So you can see the maximum salary is 990 and it is retrieved using this query, select max salary from mym. So I can use the group functions like maximum salary, minimum salary in a single query. Now my query was I want to see the maximum salary of an employee. So I used this query, select max salary from my employee. But suppose there is one requirement. I want to see the employee ID and employee name of the employee who is having maximum salary. मैं उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं जिसकी सैलरी मैक्सिमम सैलरी है। मैं क्या देखना चाहता हूं? उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जिसकी सैलरी मैक्सिमम सैलरी है। तो सबसे पहले मुझे मैक्सिमम सैलरी पता होगी तो ही मैं उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देख पाऊंगा। So first of all, what I need to do is to find the maximum salary from the table. So for that I will have to use this query, select max salary from my m. Now I want to see the employee ID and employee name from this table where salary equals to select maximum salary from. Now see, this is the complete query and this is the inner query. So this query is in the main query, so it is called inner query or nested
query. So you can see select maximum salary from my employee will return me the maximum salary, and now I know the maximum salary of the employee, and I can use this value to show you the employee ID and employee name of the employee who is having maximum salary. So होगा क्या, first of all this inner query will be executed. So when this inner query will be executed, it will return me 990. So here you will get 990 in place of this nested query. You will get 990, and now rest of the query you are able to understand. It's very easy. Select employee ID, employee name from my employee where salary equals to 990, and 990 I have received, I have got from this inner query. So this is called nested query. So let us execute this query. So see, you can see the employee ID and employee name. Even you can display the salary also. So select employee ID, employee name, salary from my employee where salary equals to select maximum salary from my employee. So you can see, so this is very easy to understand the nested query. So this is the query inside another query. So let me again show you the table data. Now let's see. Now next is I want to show you the record of the employees who are having salary greater than the salary of the employee who is from दसुआ. So मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड शो करना चाहता हूँ जिनकी सैलरी उस एम्प्लॉय से ज़्यादा है जो दसुआ से है. सो सबसे पहले तो मुझे उस एम्प्लॉय की सैलरी पता होनी चाहिए जो दसुआ से है. सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम दिस टेबल, फाइन, where employee city equals to दसुआ. So let me execute this query. तो आ गई 850. Now I want to show the records of those employees where salary is greater than this. I will explain you this any operator later on, but let's execute this query first. So see, first of all see the table data. So this is the table data, and मैंने क्या कहा कि मैंने उस एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है, उस एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है जिसकी सैलरी जो उस एम्प्लॉय से ज़्यादा है जो दसुआ से है. अब दसुआ से तो ये एक ही एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी कितनी है 850, और उससे ज़्यादा किसकी है, इसकी नवदीप की. तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी यू विल गेट दिस रिजल्ट. सो अगेन एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, फाइन. तो दिस इज अनदर सब क्वेरी. अब रह क्या गया, व्हाट इज दिस एनी ऑपरेटर, ये एनी ऑपरेटर है क्या. उसके लिए लेट मी अगेन शो यू द टेबल डाटा. अब यहाँ पे तो देखो टेबल में सिर्फ एक ही वैल्यू है दसुआ. सपोज करो कि अगर एम्प्लॉय सिटी दसुआ में एक एम्प्लॉय जो है दसुआ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं आपके टेबल में, ऐसा डाटा है कि यू आर हैविंग मोर देन वन एम्प्लॉय फ्रॉम द दसुआ, फाइन. सो उस केस में आप अगर ये यूज़ करोगे वेयर सैलरी इक्वल्स टू, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम माई एम्प्लॉय वेयर सपोज वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी
सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम माई एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सिटी इक्वल्स टू दिस हुआ, तो क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस केस में तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन उस केस में प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जांपल के लिए सपोज करो यहाँ पे एम्प्लॉय सिटी क्या है, मुकेरिया। एम्प्लॉय सिटी क्या है, मुकेरिया है। अब देखो, अब जब ये इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम माय एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सिटी इक्वल्स टू मुकेरिया, तो ये मुझे दो वैल्यूज देगी, एक 240 देगी और एक 120 देगी। तो अब इनर क्वेरी में क्या आ जाएगा, 240 और 120। अब दो रोज आ रही हैं, सो दीज टाइप ऑफ सब क्वेरीज आर कॉल्ड मल्टीपल रो सब क्वेरीज। और जो हमने पहले की थी ये वाली, दिस इज कॉल्ड सिंगल रो सब क्वेरी। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रो रिटर्न कर रही है इनर क्वेरी। सो मल्टीपल रो सब क्वेरी क्या है, जब सब क्वेरी मल्टीपल रोज रिटर्न करे तो देन दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रो सब क्वेरी। एंड व्हेन सब क्वेरी रिटर्न्स ओनली वन क्वेरी, one row, then that subquery is called single row subquery. So let's back to the example. In this case, employee city equals to Macarian, and I will be having two value 240 and 120, and now this operator is greater than, अब ये greater than दो वैल्यू से कंपेयर तो हो नहीं सकता कि सैलरी ग्रेटर देन 240, 120, ये तो होगा नहीं। सो यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा आया, एनी। सो अब क्या होता है कि मल्टीपल रोज सब क्वेरी में वी हैव थ्री टाइप ऑफ, मल्टीपल रो सब क्वेरी में वी हैव थ्री टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। थ्री टाइप ऑफ ऑपरेटर कौन से होते हैं, इन, एनी, ऑल। अब बड़ा इजी है। एनी का मतलब कि किसी भी वैल्यू से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 120 से भी ज़्यादा और 240 से भी ज़्यादा, मीन्स एनी कि वे सैलरी सपोज करो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होके आए 100, 200, तो अगर हम ग्रेटर देन एनी करेंगे तो एनी मतलब 100 से भी ज़्यादा, तो वो 150 वाली वैल्यू भी रिटर्न करेगा, 160 वाली वैल्यू भी रिटर्न करेगा। अगर मैं यूज़ करूँ ऑल, तो सैलरी ग्रेटर देन ऑल आए, तो सपोज करो इनर रो मुझे रिटर्न करती है दो वैल्यूज़ 100 और 200, तो 200 से ज़्यादा वाली आएगी, क्योंकि ऑल का मतलब वो दोनों से कंपेयर करेगा और इनका मतलब एग्जैक्टली मैच करेगा। तो एनी का मतलब कि जो इनर क्वेरी रिटर्न करेगी उनमें से किसी भी वैल्यू को कंसीडर किया जाए। ग्रेटर देन यूज़ करेंगे तो किसी भी वैल्यू से ग्रेटर, सपोज करो 100, 200, 300 है तो 120 भी शो हो जाएगा, क्योंकि एनी मतलब 100 से तो ज़्यादा है वो। In case of all, it will be compared with all the value where salary greater than all, or suppose the nested query is returning mean three value 100, 200 and 300, then ग्रेटर देन ऑल मतलब 300 से ज़्यादा, और इन का मतलब चाहे वो 100 आ जाए, चाहे 200 आ जाए, चाहे वो 300 आ जाए। सो इन, एनी, ऑल आपको हो सकता है क्लियर हो गया हो। सो यहाँ पे फिर से देखो, अगर हम क्वेरी चलाएंगे वे सैलरी ग्रेटर देन एनी, तो क्या हुआ, आई विल गेट दीज वैल्यूज। अब यहाँ पे 240 भी आ गया, क्यों आया फिर से देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसको रन कीजिए। तो यहाँ पे मेरे को क्या आया था, ये अब ये जब नेस्टेड क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो इसने मुझे क्या दिया, 120 और 240। यहाँ पे क्या आ गया, अब आप यहाँ पे सिर्फ यही समझिए कि यहाँ पे 120 और 240 है, तो सैलरी ग्रेटर देन एनी कोमा ब्रैकेट में आ गया 120, 240। अब वो वैल्यू भी आएगी जो 120 से ज़्यादा है, तो 120 से ज़्यादा क्या है, 240 भी तो है। तो जब आप ये रिटर्न करोगे तो इस वाली रो को छोड़ के बाकी चारों की चारों रोज आ जाएंगी। सो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। सेलेक्ट ग्रेटर देन ऑल करके देख लेते हैं, ऑल करके देखेंगे तो क्या होगा, अब इसको रन कीजिए। ऑल करके देखा तो अब देखो 240 वाली वैल्यू नहीं आई, क्योंकि उसने जब यहाँ पे क्या आया था 120, 240, तो ग्रेटर देन ऑल मतलब 120 को नहीं कंसीडर करेगा, अब ऑल मतलब सभी से होनी चाहिए, तो 120 से बड़ी 240 और 240 से भी बड़ी होनी चाहिए। सो दिस इज एनी ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर। एंड टिल नाउ आई हैव explained single row subquery, multiple row subquery, any operator and all operator.
So similarly you can also use the equal operator, इन ऑपरेटर, एंड इन ऑपरेटर किसकी जगह पे यूज होता है, इक्वल की जगह पे यूज होता है। इनका काम क्या है और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये टेबल का डाटा है। अब सपोज करो मैंने उन्हीं का डाटा देखना है जिनकी सैलरी क्या है, मुकेरियां वालों की सैलरी के बराबर है। अब इस केस में तो कोई भी नहीं है, चलो एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू माई एन वैल्यूज 108, suppose name is Raj, salary is salary is 240 and city is Delhi. So let me execute this query and you can see one row inserted. Now again see the table data. Now in this case you will see this data. अब देखिए, अब इन क्वेरी चलाते हैं। वे सैलरी इक्वल्स टू, वे सैलरी इन सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम माई एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सिटी इक्वल्स टू मकेरिया। अब मकेरिया वालों की सैलरी कितनी है, 240 है और 120 है, ठीक है। तो अब ये मुझे उनका रिकॉर्ड शो करेगा जिनकी वैल्यू 120 है और 240 है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सी 240 वाली भी आई, 120 वाली भी आई। ये तो वैसे भी चलो आनी थी क्योंकि मकेरिया वालों की हमने क्या हुआ, क्योंकि मकेरिया वालों की तो शो की थी 240 और 120। और सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम माई एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सिटी क्वेश्चन मकेरिया विल रिटर्न मी 120 एंड 240। एंड जब मैं इन ऑपरेटर चलाया तो इन ऑपरेटर मीन आइदर 120 और 240, और उस टेबल में किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी अगर 120 जहाँ 240 होगी वो मुझे सभी का डाटा शो कर देगा। और तभी मैंने ये रो इंसर्ट की थी जिसमें राज की सैलरी 240 है। तो इन ऑपरेटर भी आपको हो सकता है क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ तो एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये ये 2 बार वैल्यू इंसर्ट हो गई थी, तो अब देखो 2 बार ये वैल्यू आएगी। सो दिस इज़ हाउ टू यूज़ इन ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिए, एक दो बार एग्जांपल इसकी ट्राई कर लीजिए, अपनी बुक साथ में रख के पढ़ें, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो इन दिस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज़ नेस्टेड क्वेरी, how to use group function in nested query, what is single row sub query, what is multiple row sub query in any all operator. So this is enough for your from your examination point of view. Thank you for watching this video.